Good morning, students. Today we'll talk about book Beehive, chapter number 2, part 2, Shehnai of Bismillah Khan. Since we know that the part first one had Evelyn, story of Evelyn, and second is the story of Bismillah Khan. So Bismillah Khan, as we all know, is a famous Shehnai player. Now here are a couple of photographs of famous Indian classical music instrument players. So the first photograph is, it's a flute player, Pandit Hari Prasad Chaurasia. Now the second photograph is of a sitar player, Ustad Vilayat Khan. The third photograph is of the famous South Indian violin playing sisters named Rajani and Gayatri. Fourth photograph is, as we all know, is a famous tabla player, Ustad Zakir Hussain. This photograph is of a sarod player. Name is Ustad Amjad Ali Khan. Now the sixth photograph is of again a famous South Indian violin player. His name is Pandit Vadivelu Pillai. Now this instrument is called sarangi and the player is Ustad Sultan Khan. And last picture is of course of Ustad Bismillah Khan. Now this chapter talks first about the origin of Shehnai and then the life story of Bismillah Khan. So let's quickly go into the chapter. Now look into the first point. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगज़ेब जो था उसने पुंगी को अपने रियासत में बैन कर दिया था, मना कर दिया था कि कोई भी रियासत में उसके पुंगी नहीं बजाएगा क्योंकि पुंगी की आवाज़ बहुत अनप्लेजेंट थी, हार्श थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. रीडेड मतलब लकड़ी का जो फ्लूइड या बीन जैसा जिसमें होल्स होते हैं, 7 या 8 होल्स होते हैं जिसमें से फूंक मारने से अलग अलग होल से अलग अलग किस्म की आवाज़ निकलती है. तो पुंगी क्या था? एक नॉइस मेकर इंस्ट्रूमेंट था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन शायद इसको रिवाइव किया जाए, वापस से बजाने की कोशिश करी जाए. A barber of the family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से एक म्यूजिशियन था जो इस औरंगज़ेब के महल में नाई का काम करता था. क्योंकि वो महल में आ जा सकता था, उसने डिसाइड करी कि ये पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. See, look, there is a difference. This is the diagram of a pungi and this is a shehnai. So what he did, he made a few changes in this musical instrument. First of all, he increased the length of the pungi and it was broader only at the end. So what he did was, इसने एक लंबा होलो पाइप लिया. होलो मतलब अंदर से खोखला, और वो लंबा था पुंगी के मुकाबले और आखिरी में जाके चौड़ा हो जाता था. उसमें उसने 7 छेद करे. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sound were produced. जब इसने शहनाई में एयर ब्लो करी और इन जो होल्स करे थे इन पे कभी उंगलियां रखता कभी हटाता, इसमें से बहुत ही मधुर आवाज़ निकली. पुंगी की बहुत हार्श आवाज़ थी, कर्कश आवाज़ थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने राजा के सामने, औरंगज़ेब के सामने परफॉर्मेंस दी. उसने कहा कि देखिए मैंने इम्प्रूव करा, आप सुन के देखिए, और सभी को बहुत अच्छी लगी उसकी आवाज़. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. अब ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नया था, इसका स्ट्रक्चर भी फ़र्क था, आवाज़ भी फ़र्क थी, तो इसको नया नाम देना ज़रूरी था. चूँकि ये औरंगज़ेब शाह के
महल में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बनाया गया था। तो दोनों के नाम को जोड़कर शाह और नाई जोड़ के शहनाई बनाया गया, इसका नाम पड़ा शहनाई। सेकेंड पॉइंट देखिए, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को बहुत पवित्र माना जाता था, धार्मिक कामों में इसका प्रयोग किया जाता था। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. यही कारण है कि ये मंदिरों में बजाया जाता है आज भी, और किसी भी नॉर्थ इंडियन शादी में शहनाई ज़रूर बजती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। In the past, शहनाई was part of the नौबत or traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. पहले के ज़माने में जो राजाओं का जो कोर्ट होता था उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिनको नौबत भी बोला जाता था। उसमें से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई हुआ करता था, मतलब कंपलसरी वो पार्ट था। Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument on the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। काफ़ी समय तक ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से शहनाई को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जोड़ा जाने लगा। आइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी देखते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumran in Bihar. बिस्मिल्लाह खान बिहार में दुमरान नाम के एक स्टेट में, रियासत में रहते थे। वहाँ का एक तालाब था, तालाब के पास मंदिर था। तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो उस तालाब के किनारे खेलते थे गिल्ली डंडा। He would regularly go to the nearby Bihari Ji's temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. शाम की आरती में ये मंदिर, जो बिहारी जी का मंदिर था, विष्णु टेम्पल था, उसमें जाके वहाँ का जो लोक भजन था चैटा नाम से, वो ज़रूर गाते थे। क्यों गाते थे? क्योंकि इस पूजा आरती के बाद में वहाँ का जो महाराजा थे वो दान में 1.25 किलो का मोटा लड्डू देते थे जो अच्छा परफॉर्म करता था। तो इसलिए 5 साल के बिस्मिल्लाह का इतना अच्छे आरती गाते थे कि उनको महाराजा हमेशा शाम की आरती के बाद 1.25 किलो का लड्डू गिफ्ट में देते थे। This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये करीबन 80 साल पुरानी बात है और यही छोटा लड़का एक दिन इतना बड़ा कलाकार बना कि इसको इंडिया के सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है किसी भी सिविलियन को मिल सकता है वो है भारत रत्न, और वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Baksh Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur's King's Court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. अब इनका जन्म हुआ था 1916 में और ये बिहार के वेल नोन म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके फादर पैगंबर बख्श और इनके फादर की साइड के सारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छा शहनाई बजाया करते थे। इनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज नाम से पोस्टेड थे, मतलब वो शहनाई बजाया करते थे दरबार में। सॉरी। Fifth point, the young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. जब वो करीबन 3 साल के ही थे तभी उनकी माँ उनको उनके मामा के घर ले गई थी जो बनारस में था, जिससे पहले बनारस बोलते थे, आजकल वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं को जब शहनाई बजाते हुए सुनते थे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. जल्दी ही वो अपने मामा के साथ साथ जहाँ पर वो जाते थे उनके साथ चलना शुरू कर दिया। उनके मामा जो अली बख्श थे बनारस के फेमस विष्णु के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे।
Ali Baksh would play Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. जब अली बख्श शहनाई बजाते थे तो मंत्रमुग्ध होकर बिस्मिल्लाह कई घंटों तक उनको सुना करते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit participating throughout the day. धीरे धीरे उनको भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का मौका मिला और वो दिन के कई घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. कई सालों तक अकेले बैठ के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रैक्टिस करते थे, कभी बालाजी के मंदिर में, कभी मंगल माया के मंदिर में, कभी गंगा के किनारे घाट पर. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. गंगा की बहती लहरों से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने शहनाई पर अलग अलग राग बजाने की कोशिश करी जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि शहनाई से भी बजाया जा सकता है. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब उनकी उम्र 14 साल की थी तो वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जब उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, शहनाई बजाई, तो वहाँ के फेमस उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई और बोला कि तुम मेहनत करो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो. और उनकी बात बिल्कुल सही हुई. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ब्रांच खुली और तब बिस्मिल्लाह खान की बिग ब्रेक मिला, मतलब कि उनके कैरियर को वहाँ से बहुत ही अपशूट हुआ, वहाँ से उनको बहुत नाम हुआ क्योंकि अक्सर उनके शहनाई वादन रेडियो पे सुना जाता था. 7th point, when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. 1947 15 अगस्त में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को एड्रेस किया अपनी शहनाई के द्वारा. वह दिल्ली के लाल किले पर बैठकर उन्होंने शहनाई बजाई थी. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की जो फेमस स्पीच थी उससे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन किया था और लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी शहनाई सुनी थी. 8th point, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान ने अपनी ज़िंदगी में कई नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दिए थे, लेकिन उनकी पहली ट्रिप जो थी वो थी अफ़गानिस्तान की. अफ़गानिस्तान के जो राजा थे उस वक्त ज़ाहिर शाह, वो उनकी शहनाई सुन के इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उनको बहुत महंगे पर्शिया के कालीन दिए थे और भी अदर गिफ्ट्स दिए थे. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated by Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument गूंज उठे शहनाई. किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग थे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो महेश भट्ट के फादर थे, वो इतने इम्प्रेस हुए थे उनकी शहनाई से कि उन्होंने एक पिक्चर ही बना दी शहनाई पर. उसका नाम था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर. पिक्चर बहुत हिट हुई. उनके कंपोज किया हुआ एक गाना जो था वो नेशन वाइड हिट हुआ, बहुत फेमस हुआ. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Appanna.
इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान ने कुल 2 पिक्चरें करी। एक तो विक्रम भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ पिक्चर थी सांधी अपन्ना। I just can't come to the terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. अब बिस्मिल्लाह खान जी का कहना था, उन्होंने बहुत ज़ोर दे के कहा कि मुझे नकली और चमक धमक की फिल्मी दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आती। 9th पॉइंट देखिए, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इनको मिलते रहे। थिक एंड फास्ट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है आराम से आते चले गए। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने अमेरिका के बहुत फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म किया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Film Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्म किया, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी और जापान के ओसाका ट्रेड फेयर में भी। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने फेमस हो चुके थे इंटरनेशनली कि तेहरान का एक म्यूज़िकल ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर रख दिया गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। भारत रत्न मिला है, ये तो पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके अलावा भी इनको अवार्ड्स मिले थे। पद्म श्री मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." जब इनको सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड मिला तो इनकी आंखों में नमी आई और बहुत खुशी से इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए। इंडिया का जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वो बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अब तो दूसरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड भी यहाँ आकर हमारा म्यूज़िक सीखती है, तो क्यों ना हमारे बच्चे पहले इनको सीखें। 12th, in spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumran, and they will remain for him the most wonderful towns of the world. हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया घूम रखी थी, खान साहब उनको प्यार से लोग बोलते थे, वो जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था बनारस और दमरान में, वही 2 शहर उनको दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स लगते थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. उनका एक स्टूडेंट था जिस शहनाई सीखने का, वो अमेरिकन था। उसने बहुत ज़िद करी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अमेरिका के शहनाई स्कूल को हेड करें, वहाँ रहकर बच्चों को शहनाई सिखाएं। उसने कहा मैं बनारस के जैसे मंदिर यहाँ पर बना दूंगा, रेप्लिका मीन्स उस जैसा मॉडल। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मंदिर की नकल तो तुम कर लोगे, पर गंगा कहाँ से लाओगे। Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mutt of Damran." बिस्मिल्लाह खान अपने देश से बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे जब भी मैं विदेश जाता हूँ मुझे अपने देश की याद आती है। जब मैं मुंबई रह के अपने फिल्म्स के लिए म्यूज़िक देता हूँ तब मुझे बनारस की और गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस होता हूँ तो मुझे अपने दमरान जहाँ पे वो पैदाइश थी उनकी, वहाँ के मठ की याद आती है। इनको 2 ही शहर ज़्यादा पसंद थे। लास्ट पॉइंट देखिए, Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of a rich cultural heritage of India. One of the effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ये हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही मेहनती ईमानदार मुस्लिम रोज़ सुबह एक हिंदू मंदिर में जाके आरती में शहनाई बजाता है, और ये एग्ज़ाम्पल है
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक एग्जाम्पल है कि इंडिया का कल्चर हेरिटेज कितना रिच है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the Government of India declared on the day of national mourning. उनकी डेथ 2006 में हुई जब वो 90 साल के थे. लंबी बीमारी के कारण उनकी डेथ हुई और इस दिन उनको स्टेट फ्यूनरल मिला. जैसे कि चीफ मिनिस्टर की डेथ पे वैसे फ्यूनरल होता है, प्रोसेशन होता है, उस तरह का उनको फ्यूनरल मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दिन छुट्टी डिक्लेयर करी और नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया गया. सो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द क्वेश्चन. अब यहाँ ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है. द डैश वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. आंसर इज पुंगी. डैश परफॉर्म्ड द पुंगी इन transformed the pungi into Shehnai, a barber. Bismillah Khan's paternal ancestors were professional musicians. Bismillah Khan learned to play the Shehnai from Ali Baksh, his maternal uncle. Bismillah Khan's first trip to abroad was to Afghanistan. Now let us look into the which kind of feeling these statements has. Teaching children music, Bismillah Khan felt very positive. The film world, his feelings were very negative. He did not understand the artificial nature and the glamour world. Migration to USA, negative. He did not want to leave his country. Playing at the temples, positive. He loved the temples and performing near Ganga. Getting the Bharat Ratna, neutral. He was never bothered about awards or recognition or money. The banks of the Ganga, positive, because the banks of the Gangas inspired him to play different rags on Shehnai. Leaving Banaras and Damra, negative. He never wished to leave these 2 towns. Now these are the questions which we'll try to answer. I have given you 5 word meanings. You have to make 5 different sentences using these difficult words in them. Let us look at the meaning. Auspicious means पवित्र, promising to bring good fortune. Captivated मतलब मंत्रमुग्ध. Fascinated और attracted. Souvenir मतलब कोई जाता है तो अपन कुछ मोमेंटो देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, मोमेंटो. Coveted मतलब चाहते थे. Much desired. Mourning माने शोक मनाना, grief. These are the answer for part 1. Now let's look at the part 3. Question number 1. Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी को बजाना बैन क्यों कर दिया था? Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi in the royal residence because he did not like its harsh sound. Pungi was a reeded musical instrument which produced an unpleasant sound. पुंगी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी, अनप्लेजेंट थी. इसीलिए औरंगजेब ने उसको अपने महल में बजाना के लिए बैन कर दिया था. He did not allow anybody to play pungi in his palace. Question number 2. How is the Shehnai different from a pungi? शहनाई और पुंगी में क्या फ़र्क है? शहनाई produces more softer and melodious sound than pungi. It has a longer pipe than pungi, which is broader at the end. It also has 7 holes which by opening and closing improves its tonal quality. शहनाई में आवाज़ बहुत मधुर आती थी और सॉफ्ट होती थी और पुंगी की आवाज़ बहुत कर्कश थी और कानों में चुभने वाली थी. जो शहनाई थी उसका पाइप पुंगी के मुकाबले लंबा था और आखिरी में चौड़ा था. उसमें 7 होल्स भी थे जिसको बंद करके खोलकर उसकी टोनल क्वालिटी मतलब उसकी आवाज़, उसकी ट्यून्स की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती थी. Question number 3. Where was the Shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? शहनाई पहले कहाँ बजाई जाती थी ट्रेडिशनली और बिस्मिल्लाह खान ने क्या बदलाव किया? The sound of Shehnai is considered auspicious. It was traditionally played in temples and at weddings. शहनाई की आवाज़ को बहुत पवित्र माना जाता था, इसलिए ट्रेडिशनली ये मंदिरों में और शादियों में ही बजाई जाती थी. Ustad Bismillah Khan changed this and brought Shehnai at the center stage in classical music by improvising it. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई में अलग अलग राग बजाए थे,
इसीलिए उसको क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डाला गया। He also played different rags on it which were considered beyond its range. जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शहनाई में भी ऐसे राग बजाए जा सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वो बजाया। When and how did Bismillah Khan get his big break? बिस्मिल्लाह खान को अपने कैरियर में पहला बड़ा मौका कब मिला? Bismillah Khan got his big break in 1938 when a branch of All India Radio was opened at Lucknow. He often performed on the radio. जब इंडियन ऑल इंडिया रेडियो की ब्रांच लखनऊ में खुली 1938 में, तब उनको बड़ा मौका मिला अपने कैरियर में, क्योंकि वो अक्सर रेडियो पे शहनाई वादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ शहनाई बजाई और वो इवेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan played Shehnai at the Red Fort, New Delhi. He became the first Indian to greet the nation on its independence. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने आज़ादी के बाद लाल किले से पहली बार लोगों को संबोधन किया अपनी शहनाई वादन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलने के लिए क्यों मना कर दिया? बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई school in USA despite his students' promise to recreate the atmosphere of Banaras because he loved his country. उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने देश से दूर नहीं रह सकते थे। It was impossible for his student to replicate Ganga. Khan Sahab missed काशी विश्वनाथ टेम्पल and मठ of दमरान. उनके स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो बनारस का माहौल वहाँ पे बना के रख देंगे, लेकिन वो गंगा को नकल नहीं बना सकते थे और खान साहब को काशी विश्वनाथ मंदिर और दमरान के मठ से दूर नहीं रह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच विल टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ऐसे 2 इंस्टेंस बताइए कि जब इसमें आपको एग्जाम्पल दे सकें कि बिस्मिल्लाह खान को इंडिया पसंद था, बनारस पसंद था। तो ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। द 2 इंस्टेंसेस वर फर्स्ट व्हेन ही वाज called to in America to start a Shehnai school which he refused because he missed his country, and the second instance is when he was in Mumbai doing the giving the music for film industry where he missed Banaras. So you can write this answer on your own. So this complete our chapter. Thank you class.